recording now. So there is no interaction between metal orbitals and ligand orbitals. Third point. Fourth one, repulsion between ligands and electron in d orbitals of metal remove degeneracy of d orbitals and plays an important role to determine geometry and other properties of complex. इसका मतलब ये हुआ जो d orbital d subshell में 5 orbitals थे and they have the same energy initially, clear? Now their same energy level, their degeneracy will destroy. अब उनका same energy level नहीं होगा. Now because of interaction with the ligands, they will have somewhat different energy. उनके energy में difference आ जाएगा कुछ. So जो orbital along the axis है, if ligands are approaching along the axis, then they will have somewhat more interaction. So ये orbitals हैं जो along the axis थे हमारे dx2, y2 and dz2. So इनसे ज्यादा interaction होगा और इनका energy ज्यादा change होगा if ligands are approaching along the axis. Second possibility, if ligands are approaching in between the axis, then the interaction will be more with dxy, dyz and dxz जो in between the axis. तो डिपेंड करेगा लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं. जिस भी ऑर्बिटल्स की तरफ अप्रोच करेंगे उसका उससे ज्यादा रिपल्शन, उसका एनर्जी ज्यादा इंक्रीमेंट. एनर्जी तो सारे ऑर्बिटल्स का इंक्रीज होना है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बट द मोर इंक्रीमेंट विल बी देयर which basically present along the line joining to the ligands approaching. Clear? Is that okay? These 5 points. क्या इतना क्लियर है? केशवी, लक्षिका, मनीष? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Octahedral crystal field. Octahedral crystal field means we need to determine, we need to describe coordination number with 6, coordination number with 4 separately. दोनों में अलग interactions होंगे, अलग अलग हमें उनको explain करना है. क्या? So यहाँ पर coordination number 6 में सबसे पहले 5 d orbitals dxy, dyz, dxz, dx2, y2, dz2 are of equal energy and are called degenerate before interactions with the ligands. So before interaction with the ligands, they are degenerate, they have the same energy level. But see, ये diagram देखो, इससे तुम्हें थोड़ा सा और clarity आएगी. There are 2 orbitals which are present along the axis, जिन्हें हम बोलते हैं EG orbitals, and there are 2 orbitals which are present in between the axis dxy, dyz, dxz, उन्हें कहा जाता है T2G. So if ligands in case of octahedral field, this is the axis, x axis, y axis, z axis, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, x, y and z. clear? जो ligands है, they are approaching in this direction. First plus x minus x, 2 direction, plus y minus y, this 2 direction, and plus z minus z, this 2 directions. Total 6 directions हैं जहां से ligands approach कर रहे हैं. Clear? So if ligands are approaching through this 6 direction, then the interaction of ligand will be more with T2G or EG. किसके साथ होगा? चेतना, किसके साथ ज्यादा interaction होगा, T2G के साथ या EG के साथ? T2G के साथ. T2G के साथ along the axis. EG के सर. Along the axis T2G के साथ. सर. EG के साथ होगा. तो octahedral crystal field में coordination number 6 में the interaction is more with EG orbital, that is orbitals which are present along the axis. वही यहाँ पे लिखा है, ligands are approaching towards the EG. Interaction तो T2G से भी होगा, but the interaction with EG is more pronounced, clear, dominating. So तुम यहाँ पे देखोगे पहले 5 orbitals same energy level पे थे, now their energy level is increasing. Average energy level यहाँ पर आ गया है. This is the average energy level. clear? अब average energy level से dx2, y2, dz2 का थोड़ा ज्यादा, dxy, dyz, dxz का थोड़ा कम, दोनों का सम मिलकर इस लेवल पे आ जाना चाहिए एवरेज पर. clear? So हम इसको बोल देते हैं the splitting of these orbitals into 2 different energy state. उनका बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको डिनोट कर दिया जाता है डेल्टा ओ.
delta OO for octahedral. Clear? Delta is the energy difference. O लिख देते हैं, OCT लिख देते हैं, octahedral के लिए कुछ भी लिख सकते हैं. And the total energy of this plus this will be at this level. तो इनका एनर्जी ऊपर कितना बढ़ा है 0.6 डेल्टा नॉट से, इनका एनर्जी कितना कम हुआ है 0.4 डेल्टा नॉट से. अच्छा 0.6 डेल्टा नॉट में कितने ऑर्बिटल्स हैं? एवरेज एनर्जी लेवल जो इंक्रीज हुआ था उसके ऊपर 2 ऑर्बिटल्स हैं dx2 y2 dz2. Can we say that the change in energy is 2 into 0.6 delta O? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ये Yes, जो sir. Yes, sir. और डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज को माइनस साइन, सो 3 ऑर्बिटल है, 3 into 0.4 डेल्टा O. क्या इनका एडिशन 0 आ रहा है? 0 आ रहा है मतलब हम इस एवरेज एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं. 2 6 are 12, 3 4 are 12, तो ऊपर 0.6 नीचे 0.4, एडिशन तो एवरेज पे आना ही है. Is that okay? Yes, sir. This is the explanation for this thing कि ये क्यों ऐसा लिखा गया है 0.6 डेल्टा O 0.4 डेल्टा O. इसका एक्सप्लेनेशन था. आई होप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा. निशांत, पार्थ, प्रणव इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यश, Yes, sir. ओके. सो इस पेज पे किसी को कोई पॉइंट ऐसा लग रहा है जो एक्सप्लेनेशन जिसका चाहिए, जो नहीं समझ में आया हो अभी? हमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर 6, all ligands are approaching along the axis. So 6 ligands donor atoms approaches along the axis, ये हमें ध्यान रखना है. Electrons of ligand repel EG orbital more strongly than T2G orbital. Along the axis जो orbital वो ज्यादा repel होंगे. एनर्जी सबका बढ़ेगा बट EG का ज्यादा बढ़ेगा, T2G का कम बढ़ेगा. तो स्प्लिट हो गए जो पहले डीजनरेट ऑर्बिटल थे, नाउ दे आर नॉट डीजनरेट. द वर्ड डीजनरेट मींस सेम एनर्जी लेवल. सो अब वो डीजनरेट नहीं होंगे, उनमें डीजनरेसी रिमूव हो जाएगी, उनका एनर्जी लेवल सेम ना होकर 2 डिफरेंट उसमें हो जाएगा. उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा हो. क्लियर? Sir, यस. sir, वो along the axis ही क्यों approach कर रहे हैं? अलोंग द एक्सिस इसलिए अप्रोच करें, बेसिकली पता है जो एटम होता है उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऑर्बिटल्स मतलब अलोंग द एक्सिस है. एक्सिस दैट वी आर डिफाइनिंग एक्सिस कि ये एक्सिस है जहां पे ऑर्बिटल्स है. तो इसको बेटर वे में मैं थोड़ा सा और डेप्थ में समझने की कोशिश करूंगा तो ये होगा, लिगेंड्स उस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में वो बेटर अट्रैक्शन क्रिएट कर पाए ओवरऑल. ऑर्बिटल ऑर्बिटल तो रिपल्शन होगा, बट न्यूक्लियस के साथ तो अट्रैक्शन होगा ना, जहां पे वो बेटर बॉन्ड बना पाए न्यूक्लियर सेंट्रल एटम के साथ. तो वो जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल होते हैं उसी डायरेक्शन में जब अप्रोच करते हैं तो एक बेटर बॉन्डिंग होती है, सिमेट्रिक होती है, स्टेबिलिटी होती है. क्लियर? Yes, sir. अब देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड तो हमने वहां पे डिफाइन कर दिया था वीबीटी में. और कैसे डिफाइन किया था? जो ज्यादा इंटरेक्ट करता है. मुझे बताओ जो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस आया, ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये स्प्लिटिंग हुई क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्प्लिटिंग? क्यों डी सबशेल 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में ब्रेक हो गए हैं? क्या वो इसलिए ब्रेक हुए हैं क्योंकि लिगेंड सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच कर रहा था? हाँ सर. यदि वो इसलिए स्प्लिट हुए हैं क्योंकि सेंट्रल एटम की तरफ लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे, सो स्ट्रॉन्गर द अप्रोच ग्रेटर विल बी दिस स्प्लिटिंग. यदि वो अप्रोच ही नहीं करते तो स्प्लिटिंग होती ही नहीं. तो जितना ज्यादा वो क्लोज जा रहे होंगे, जितना ज्यादा सेंट्रल एटम की तरफ लिगेंड्स जा रहे होंगे, जितना स्ट्रांगली अप्रोच कर रहे होंगे, उतना ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी. एम आई राइट? Yes sir. Yes, sir. अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, अगेन सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको बोलते हैं? जो ज्यादा स्ट्रांगली अप्रोच करते हैं. वीक फील्ड लिगेंड उतना स्ट्रांगली अप्रोच नहीं करते हैं. सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए क्या लगता है, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है, दिस स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी मोर और विल बी लेस फॉर स्ट्रॉन्ग More. फील्ड लिगेंड? मोर. ग्रेटर द अप्रोच, More. ग्रेटर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम, क्योंकि उसी के कारण तो हुआ है, वो अप्रोच कर रहे थे. नेक्स्ट पॉइंट, चलो कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर?
हाँ केशवी पढ़ना चालू करो फर्स्ट पॉइंट से ऑन दिस पेज। Keshavi is there or not? Harsh? हर्ष पढ़ना चालू करो। Yes, sir. हम्म, For strong field ligands, interaction is more, hence octahedral is more, delta octahedral is more, and for weak field ligands, interaction is less, hence delta octahedral is less. okay, I have already explained this. Next one. Electrons that occupy the EG orbitals are more strongly repelled by the relatively closed approach of ligands, and this electron trend to stabilize octahedral complexes. So electron that occupy the EG orbitals. EG orbitals means orbitals which have more interaction are more strongly repelled by the relatively close approach of ligands, and this electron tends to destabilize. Greater the energy, lesser the stability. So EG में the electron जाएंगे तो वो stability को कम करेगा क्योंकि उनका energy ज्यादा है। चलो first example पे आते हैं हम। Now the first example, COF6 3-, cobalt exists in +3 oxidation state. So इसका explanation हमने कहाँ से दिया था? VBT से भी दिया था, अब हम CFT से दे रहे हैं explanation. So initially the electrons are this CO3+, कुछ 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था, आफ्टर इंटरेक्शन उनका एनर्जी सबका बढ़ गया, सो ऐसे कुछ स्प्लिटिंग हो गई। अच्छा अभी बताओ, फ्लोरीन इज कंसिडर्ड टू बी वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वैसे कोबाल्ट 3+ एक्सेप्शनल केस है, राइट? कोबाल्ट 3+ के साथ मैक्सिमम लिगेंड्स एसएफएल जैसा करते हैं, बट स्टिल जो हेलाइट्स होते हैं वो अभी भी WFL है। सो यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। सो हमने इलेक्ट्रॉन का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया। सबसे पहले मैं फिर से लेवल ड्रॉ करता हूँ ना, 1 2 3 T2G एंड 1 2 EG। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में 1 2 3, फिर ऊपर जाएगा 4 5, अब एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो नीचे आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये जो सेंटर लेवल है ना इनका, बड़ा हुआ एनर्जी लेवल का सेंटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बारी सेंटर, BARI। अगेन बहुत वेल नोन टर्म नहीं, एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फर्स्ट पॉइंट, डेल्टा O is small as F minus is WFL. डेल्टा O is less than पेयरिंग एनर्जी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी ना कि क्या हो रहा है, पेयरिंग एनर्जी क्या है एग्जैक्टली। मैग्नेटिक मोमेंट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल में? 4 अनपेयर्ड, √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर? क्या इतना समझ में आता है? सिर्फ पेयरिंग एनर्जी मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है अभी, वो मैं बताता हूँ। क्या बचे हुए सारे पॉइंट्स क्लियर है? सीएफ वो एग्जांपल एक बार समझा दीजिए ना वापस। देखो इस एग्जांपल में हमारे पास कोबाल्ट 3+ है, उसमें T2G NEG ऑर्बिटल को हमने स्प्लिट कर दिया ऐसे दो डिफरेंट एनर्जी लेवल में। क्लियर? इनको जब दो डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिट किया, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 6, 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ इफ यू वांट टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंट्रल एटम, तो हमें क्या क्या पता करना है? सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट कितने अनपेयर्ड है? 4 अनपेयर्ड। क्लियर? इसके कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा भी लिखा जाता है, T2G6 नहीं, T2G4 और बाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, T2G4 EG2 ऐसे भी लिख दिया जाता है कॉन्फ़िगरेशन को कभी कभी। क्लियर? अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट √24 बोर मैग्नेट्रॉन, कितने अनपेयर्ड है? 4, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या इतना क्लियर है हमें? हाँ सर। देखो अब समझना, 1 2 3 4 5 ये T2G एंड EG ऑर्बिटल्स हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मे बी पॉसिबल कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां जाने के बजाय या तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा 4 5 6 7 8 9 एंड 10, एक पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। वन पॉसिबल
possibility will be this one, 1 2 3. अब बजाय इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के, हायर एनर्जी लेवल में जाने के, पेयरिंग हो जाए अगेंस्ट द हंट्स रूल. हंट्स रूल ने ये कहा था कि पहले डी सबशेल पूरा फिल होना चाहिए, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया है डी सबशेल का, एनर्जी बढ़ गया है ईजी ऑर्बिटल्स का. सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय नीचे, फिफ्थ नीचे, सिक्स नीचे, नाउ द सेवंथ इलेक्ट्रॉन विल गो इन अपसाइड. 7 8 9 10 ऐसा कुछ होगा. तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक बार सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गया है, T2G में, EG में, फिर पेयरिंग हुई. एक बार T2G में पेयरिंग हो गई, उसके बाद EG में इलेक्ट्रॉन गया है. देखो दोनों पॉसिबिलिटी में से कब कौन सा होगा? यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो है डेल्टा. दो चीजें हैं, या तो हम इलेक्ट्रॉन को, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हम बात करें, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 तो फिक्स ऐसा ही होना है. either you can send fourth electron here or you can pair it up. So दोनों में एक एक पॉसिबल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है. जब तुम ऊपर भेज रहे हो तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी, इतना एनर्जी बढ़ रहा है. क्लियर? क्योंकि हम यहाँ पे इतना एनर्जी बढ़ा रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन का. सेकंड, यदि तुम ऊपर नहीं भेज रहे हो ईजी में, इफ यू आर पेयरिंग अप इलेक्ट्रॉन, तो पेयरिंग के कारण जो रिपल्शन एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है. सो एवरी सिस्टम हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स ओवरऑल एनर्जी. यदि कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करेगा, सो स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी को कंपेयर कर लेगा. लेट्स से डेल्टा कम है, यदि डेल्टा कम है तो ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यदि पेयरिंग एनर्जी कम होता तो पेयरिंग हो जाती, ऊपर नहीं जाता इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है? Yes, मतलब मेरे sir. पास ऑप्शन है, या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर अप करवा दूं या ऊपर भेज दूं. तो जो भी कम एनर्जी है वो हो जाएगी. पेयरिंग एनर्जी कम तो पेयरिंग हो जाएगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी कम तो ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन. सो डिपेंड करेगा कि कब क्या है. अब स्प्लिटिंग एनर्जी कम कब होगी? जब WFL है. और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब SFL होगा. तो SFL होगा तो नीचे पेयरिंग हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगा. और यदि WFL है तो ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी. तो पेयरिंग एनर्जी, इट इज द एनर्जी, it is the extra energy created due to pairing of electron against Hund's rule. हमने इलेक्ट्रॉन को पूरा फिल करने के बजाय पहले पेयर अप कर दिया. चेक करो, ये एग्जांपल क्लियर है? अभी WFL था, यहाँ पे ऑक्टाइडल डेल्टा ओ कम था, स्प्लिटिंग एनर्जी कम था, इसलिए पेयरिंग प्रेफर्ड नहीं हुई. Is that okay? Yes, sir. कॉपी कर लो एग्जांपल जल्दी से. सर यस. सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब पेयरिंग होगी और कब नहीं होगी? देखो ये वाले केस में पेयरिंग नहीं हुई. अब मैं सेकंड केस में पेयरिंग करके बताता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें वापस से. सर वो क्या बारी सेंटर है क्या? बारी, BARI, बारी सेंटर. हो गया सार्थक कॉपी? हाँ सर, हो गया.
प्रथमेश कॉपी हो गया, चले आगे। हाँ सर, हो गया। अच्छा, आज शाम को लेकर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, वैसे तो शायद मैंने किया ही था। आज शाम को जो सेशन है उसमें एसटीजे सर का लेक्चर है, डाउट उसमें डीपीपी डिस्कशन में, और उन बच्चों का है ना डीपीपी एक बार का हो चुका है शायद डिस्कस, स्टिल पीरियोडिक बॉन्डिंग का जो डीपीपी 2 शेयर किया था, बट स्टिल शायद किसी के डाउट रहेंगे तो पूछेंगे, तुम भी अपने डाउट्स रहेंगे तो पूछ लेना। और यदि बाई चांस, कितने डाउट्स हैं वैसे तुम्हारे उसमें, कितने बच्चों ने सॉल्व किया है, हैंड रेज करो। डीपीपी 2 5 बच्चे बस, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ 5 बच्चों ने ओडीपीपी किया है, 6। अनिकेत नहीं किया? अंकित, अनिकेत, लक्षिका, सार्थक, सायमा, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो डीपीपी डिस्कस होगा और उसके बाद सर पीरियोडिक और बॉन्डिंग के वो क्वेश्चंस लेंगे, तो एचएलपी वाले। वाला पूछा आपने क्या पहले वाला? डीपीपी नंबर 2। और एपीएसपी भी उसके बाद पीरियोडिक और बॉन्डिंग का डिस्कस होगा। मेरा वाला जो एपीएसपी है, ठीक है, मैं तुमसे ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम सब एक साथ कर लो, बट यस धीरे धीरे कर लो। मेरा वाला जो एपीएसपी है मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो मैं शायद मंडे को डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज तुम्हारा ऐसा, इसलिए मैंने एक दो दिन का और टाइम दे दिया। इवन यदि शाम तक तुम्हें टाइम मिले तो ट्राई करो कि पीरियोडिक बॉन्डिंग के भी एपीएसपी कुछ सॉल्व कर लो, और देख लो नहीं करना है, यदि सभी नहीं कर रहे तो फिर मैं बाद में ले लूंगा एक बार डिस्कशन उसका। क्या करना चाहते हो बोलो, कितने लोग करने वाले हैं आज क्लास अटेंड? सर कितने बॉन्डिंग बच्चे? हो जाएगा सर। ठीक है, कर लेना, देख लेना, मतलब वो करोगे सॉल्व तो सही रहेगा, और नहीं कर रखे अटेंड करोगे तो उसका तो कोई यूज नहीं है। तो पीरियोडिक बॉन्डिंग के डीपीपी डिस्कशन होंगे, तुम भी अपने डाउट्स वहां पे पूछ सकते हो, वैसा है। बट मोल का और केमिकल इक्विलिब्रियम का तो कर ही लेना है पीएसपी एटलीस्ट मंडे तक। सर एचएलपी या पूरा एपीएस? एचएल जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया है। ये डेफिनेटली मैं उन बच्चों से तो मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो 11th में रेजोनेंस में थे, जिन्होंने 12th में ज्वाइन किया है वो ठीक है, मतलब पहले तुम अपना करंट चैप्टर्स पर फोकस कर लो, कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो जो रिवीजन लेक्चर्स हैं उस पर देख लेना मैंने। ओके, सेकंड केस, CONH3 whole 6 3+, the similar configuration cobalt 3+, so that we can compare strong field ligand and weak field ligand, सब कुछ वैसा ही है जैसा लास्ट टाइम था, but after splitting now electron will paired up before filling EG orbitals। यहाँ पे EG ऑर्बिटल को फिल करने के पहले इलेक्ट्रॉन T2G में पेयर्ड अप हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि अमोनिया का इंटरेक्शन इतना ज्यादा है, इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए हमारे पास कुछ इस मैनर में, क्लियर, 3 इलेक्ट्रॉन में कोई इशू नहीं है, बट नाउ द fourth electron will go in the T2G orbital instead of here। यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा because of higher splitting energy, because ammonia is a strong field ligand, it interact more strongly with the central atom। Is that okay now? क्या हमें समझ में आ रहा है क्यों इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे गया, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ? सार्थक? हाँ Yes, सर। sir. तो सिंपल सा लॉजिक है, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड में ये डेल्टा ओ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। पी पेयरिंग एनर्जी तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगी, बट हमें कंपेयर किससे करना है? डेल्टा से। ये चेंज होता रहता है, डिपेंड्स कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, राइट? सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने पर ये ज्यादा होता है क्या? स्प्लिटिंग एनर्जी। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को डिफाइन ही ऐसे करते हैं जिसका स्प्लिटिंग, बेसिकली हमें कैसे पता चला, ये पूरा सीरीज जो हमने बनाया था ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विच वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, विच वन इज वीक फील्ड लिगेंड, हमें पता ही ऐसे चलता है
हम एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जिसके लिए पेयर्ड अप हो गए उसका डेल्टा ज्यादा, उसे हम SFL में काउंट कर लेते हैं। तो जो अमोनिया है ना बॉर्डर पे आता है, बाकी अमोनिया के बाद वाले सारे स्ट्रॉन्ग जैसा एक्ट करते हैं, नीचे वाले सारे वीक जैसा एक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली वी कैन डिटरमाइन दिस स्प्लिटिंग एनर्जी आल्सो, हम इसे डिटरमाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे डेल्टा कम, ये पेयरिंग एनर्जी से, ये कांस्टेंट है पेयरिंग एनर्जी। इफ डेल्टा इज लेस वी कॉल इट वीक फील्ड लिगेंड, इफ डेल्टा इज मोर वी कॉल इट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दैट्स इट। क्लियर है उतना? Delta O is large as NH3 is SFL. First point. Delta O is greater than pairing energy. यहाँ पे splitting energy, इसको splitting energy बोलते हैं, जो split हुए उनके बीच में जो energy difference आया है। Hence pairing energy, splitting delta is greater than pairing energy. Hence pairing is preferred. Pairing energy कम है तो preferred हो रही है before filling EG orbitals. Mu is zero, diamagnetic, low spin, complex. तो जो VBT से हमें मिला था ना वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से भी मिल रही है। क्लियर? सिमिलर वे में हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हम इसको कहीं हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्या इतना हमें समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो सेकंड एग्जांपल भी, और उसके बाद ये क्वेश्चंस करना है तुम्हें जो दिख रहे हैं। तुम्हें इस क्वेश्चन में करना क्या है, इन क्वेश्चंस में सभी में ये डायग्राम बनाना है, कॉम्प्लेक्स लिखना है। और ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम जो मैंने अभी सर्कल किया है, ये डायग्राम सभी के लिए बनाना है। हिंट दी हुई है तुम्हें, इसका कितना म्यू है। पहले दो WFL है, बाद का SFL है। अथर्व, यस सर। तुझे कैसे पता चला ये सोसाइटी है? कोई रिलेटिव रहता है क्या यहाँ पे? नहीं सर, मैं बहुत बार आ चुका हूँ उधर। क्यों, ऐसे ही घूमने फिरने आ चुका है क्या? वो भी है, और मेरे विजडम है के दोस्त रहते हैं सर वहाँ। अच्छा, और तू कहाँ रहता है? मैं महात्मा नगर रहता हूँ सर। तुम में से कोई बच्चा रहता है गंगापुर रोड तरफ, श्रीन मिडोज, गंगापुर रोड? हम्म, देखो, Mn exists in +2 form. First case Mn2 plus D5 configuration. So D5 1 1 2 3 4 5. So initially each orbital will have one electron. तुम्हें डायग्राम बनाना था ना एग्जैक्टली। फिर यहाँ से ऊपर गए, स्प्लिट हो गए हम दो पार्ट में, 1 2 1 2 3। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमें चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर्ड अप अगेंस्ट द हंस रूल, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है वीक फील्ड लिगेंड में। मैग्नेटिक मूवमेंट सारे के सारे 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, √35 बोल मैग्नेट्रॉन, √5 × 7।
I think first is okay to everyone. Paramagnetic nature, 5 unpaired इलेक्ट्रॉन है, Yes, sir. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कम नहीं किया है। और रही बात इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो तो इसमें डिफाइन ही नहीं होगा इन केस ऑफ CFT, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो वैसे भी कोई नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ, BBT के थ्रू हम जरूर बता सकते हैं इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब सिमिलर इंफॉर्मेशन ही मिल रही है हमें यहाँ से भी। सर ये हाई मैं स्पिन से- कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें 2 कंडीशंस होंगी सिर्फ हाई स्पिन में। एक तो म्यू नॉन जीरो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इनिशियल जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जो फाइनल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम होने चाहिए। यदि हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज नहीं किया है तो हाई स्पिन, और अगेन हमने इनिशियल भी जीरो है फाइनल भी जीरो, तो फिर वो लो स्पिन में ही काउंट हो। मतलब जब जीरो ही है तो फिर स्पिन बचा ही नहीं कुछ। इज दैट ओके? यस सर। मैं एक केस और बता देता हूँ, CrCN63 माइनस का, Cr3+ मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम 3+ में। सो यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फिर एनर्जी बढ़ी कुछ 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर पता है हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो डजंट मैटर CFL है या SFL है या CFL में SFL या WFL है, वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों में से कुछ भी हो मैटर ही नहीं करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन अपने नीचे चले जाएंगे, पहले भी 3 अनपेयर्ड बाद में भी 3 अनपेयर्ड, तो ये भी हाई स्पिन होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में भी हाई स्पिन होगा। म्यू √3 × 5 √15 बॉल मैग्नेटॉन। क्लियर है उतना? Yes, sir. हाँ सर। हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। Sir, B low spin है ना? बी लो स्पिन क्यों है? C2O4 वीक फील्ड लिगेंड में काउंट होता है ना। D6 कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 4 5, कुछ स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 6, सो 4 अनपेयर्ड है 1 2 3 4। C2O4 वीक फील्ड लिगेंड में, ठीक है। Yes. सेकंड केस, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अभी था ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, नाउ द टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में हमें क्या करना होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग डील करना होगा। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो तुम मुझे ये बताओ, लिगेंड्स का जो अप्रोच होता है 109 डिग्री पे होता है, दे आर नॉट एट 90 डिग्री, 109 डिग्री पे होगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा यदि एक बॉक्स डायग्राम बना के एक फीलिंग देता हूँ कि कैसे इसमें लिगेंड अप्रोच करेंगे। इसके सेंटर पर, इस क्यूब के सेंटर पर हमारा क्या है, एक सेंट्रल एटम है, उसमें +x +y -y +x -y +z -z, ये कुछ 3 एक्सिस हो गई 3 डायरेक्शन में। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे अलोंग द एक्सिस, एक इस डायरेक्शन से दूसरा इस डायरेक्शन से, 6 डायरेक्शन से। अब लिगेंड्स पता है कहां से अप्रोच करेंगे, अब करेंगे टेट्राहेड्रल में। मैं ग्रीन सर्कल से पॉइंट आउट कर रहा हूं, तुम समझना। एक तो करेगा यहां से, क्लियर, पहला वाला। सेकंड वाला करेगा यहां से, थर्ड वाला करेगा इस कॉर्नर से, फोर्थ वाला करेगा इस कॉर्नर से। चेक करो क्या सेंटर के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फील कर पा रहे हो? ये 4 डायरेक्शंस टेट्राहेड्रल देख पा रहे हो तुम इन 4 डायरेक्शन को? यहाँ Yes, से sir. एक लाइन कनेक्ट करो, ऐसे 4 लाइन कनेक्ट करो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री काइंड ऑफ हो गया वो। Yes, sir. तो उनका जो अप्रोच होगा, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच कुछ इस मैनर में होगा। डेफिनेटली एंगल थोड़ा अलग होगा बट इस डायरेक्शन में होगा। क्या ये अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं क्या ऑर्बिटल्स? नहीं। अब मैं नहीं। इन बिटवीन लेता हूँ। पता है इन बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल है? ये तुम ले लो +1
वाई और ये ले लो प्लस एक्स, लेट से ये वाला एक्सिस। तो ए डी एक्स वाई ये वाला डायरेक्शन हो गया जो मैंने अभी ड्रॉ किया ग्रीन मार्क, ग्रीन उस कलर से। क्या लिगेंड्स उनके तरफ अप्रोच कर रहे हैं क्या? अब लिगेंड्स ना अलोंग द एक्सिस जा रहे हैं, ना एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस जा रहे हैं जिसपे ईजी ऑर्बिटल, so they are not moving either along the axis or either in between the axis. क्लियर? तुम इस डायग्राम से थोड़ा सा और अच्छे से इसे समझ पाओगे। ये वाला डायग्राम, ये T2G ऑर्बिटल, ये EG ऑर्बिटल, लिगेंड्स कहीं बीच में ही जा रहे हैं, ना T2G की तरफ ना EG की तरफ। क्लियर? तो इंटरेक्शन तो दोनों से होगा। क्लियर? स्प्लिटिंग यहाँ भी होगी। ये लिगेंड्स का जो वे ऑफ अप्रोच है दैट विल बी मोर क्लोज टू T2G. They are not exactly along the T2G, but they are more close to T2G. Clear? So क्या लगता है स्प्लिटिंग में अब किसका ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा? If the way of approach is close to T2G, T2G का। T2G। तो इसका स्प्लिटिंग कुछ ऐसा हो जाएगा। See here, this will be the splitting for टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब EG नीचे T2G ऊपर, इनवर्स हो गया है जो लास्ट केस में था। लास्ट केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G नीचे था, EG ऊपर था। Is that okay? Yes, sir. चलो हम आते हैं वापस से इस पर। विधि पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। Yes, sir. In tetrahedral complex, the d orbital splitting is inverted and smaller as compared to the octahedral field splitting due to a number of ligands decreases to 2/3, that is from 6 to 4. So first of all, the splitting energy for the tetrahedral is much less than octahedral. उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो है पहले 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे, अब 4 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। तो द रिपल्शन ड्यू टू 4 लिगेंड्स विल बी लेस। यदि 4 लिगेंड के कारण लेस है तो कितना हो जाएगा? 4/6, 2/3 तो वैसे ही हो रहा है हमारा। क्लियर? सो नंबर ऑफ लिगेंड्स बिकम 2/3 टाइम्स, सो स्प्लिटिंग एनर्जी 2/3 का एक फैक्टर तो ये आ जाएगा। एक और 2/3 का फैक्टर आता है, उसमें जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच था वो एग्जैक्टली EG ऑर्बिटल की तरफ था, अब ना T2G की तरफ है ना EG की तरफ है। तो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ 2/3। एक 2/3 फैक्टर आएगा नंबर ऑफ लिगेंड्स का, एक 2/3 फैक्टर आता है वे ऑफ अप्रोच का। तो टोटल कितने बाय कितने टाइम्स हो जाएगा वो? 2/3 into 2/3 टाइम्स, 4/9 टाइम्स। कोई बता सकता है व्हाई नेगेटिव साइन इज देयर? व्हाट डज इट मीन नेगेटिव साइन? इन्वर्ट हुआ है ना। इन्वर्ट हो गया है। अब T2G का एनर्जी बढ़ गया है, पहले T2G का एनर्जी कम था। सो नेगेटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंट इन्वर्जन ऑफ स्प्लिटिंग। क्लियर? कंटिन्यू विद द सेकंड पॉइंट। Ligands are not approaching towards central atom along the line of any orbital, which decreases splitting energy further by 2/3. Delta T is equal to -2/3 into 2/3. Delta O is equal to -4/9 delta. एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन में ना इज इक्वल टू दिस 2/3 इज 4/9, तो इनवर्स हुआ है और 4/9 टाइम्स हो गया है। क्या हम ये बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग एनर्जी वो ऑलरेडी 4/9 43-44% पे चला गया है? यदि वो ऑलरेडी 43-44% पे चला गया है स्प्लिटिंग एनर्जी, सो स्प्लिटिंग एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि काफी कम हो गया है। अब चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, मैटर ही नहीं करेगा। सो स्प्लिटिंग एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब है यहाँ पे पेयरिंग कभी भी प्रिफर्ड नहीं होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन EG में फिर T2G में जाएंगे। जब तक 1-1 इलेक्ट्रॉन सब में नहीं जाता पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट, ligands are approaching more towards T2G than EG orbital। ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। कॉपी करो जल्दी से, गिविंग यू 2 minutes, कॉपी एवरीथिंग। आयुष निकम क्लियर है इतना?
Yes, sir. So this will be the splitting for d orbitals in presence of tetrahedral crystal field when coordination number is 4. In such case, low spin complex is not preferred. Low spin complex मतलब forcefully हम paired up नहीं करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को, उनको unpaired ही रहने देंगे. The reason is here this splitting energy is very less. Clear? So forcefully कभी pair up नहीं कराया जाएगा. Electron 1, 2, then third electron will go upside. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा कुछ होगा. Example FeCl4 minus NiCO4 ZnNH3 whole 4 plus 2 ZnCl4 2 minus FeCl4 minus, ये सारे एग्जाम्पल है टेट्राहेड्रल के. क्या इतना हमें समझ में आता है? कॉपी कर लो जल्दी से पेज भी. आज तो पावर कट आई डोंट नो कितना लंबा कैसे, सैटरडे ना शायद आज में भी पॉसिबल उसके कारण. अच्छा मुझे ये बताओ जो भी नासिक में रहते हैं, पावर कट मतलब मुझे ऐसा सर इसमें वो पॉइंट समझा दो ना, इन सच केस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. बेसिकली इन सच केस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट पॉसिबल. हमारे पास यहाँ पर कुछ 5 ऑर्बिटल्स है. If the splitting energy is very less between these orbitals, the first electron will go in this manner, first 2 electron. अब third electron के पास ऑप्शन है या तो वो यहाँ चला जाए या फिर वो यहाँ जाए. So if splitting energy is very less, clear, यदि ये splitting energy बहुत कम है टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा टी, तो हमेशा वो ऊपर चला जाएगा. पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है. यदि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग विल नॉट बी प्रिफर्ड. डेल्टा टी कम है तो डेल्टा ऊपर जाना प्रिफर्ड होगा. क्लियर है अभी? तो यहाँ पे हमेशा पहले हाई स्पिन होगी, 5 इलेक्ट्रॉन सारे अनपेयर्ड, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी. क्या भी क्लियर है? हाई के केस में भी क्या एसएफएल के केस में भी ऐसे ही होगा क्या? किसके केस में? एसएफएल. हाँ, इवन एसएफएल के केस में भी ऐसा ही होगा जैसा यहाँ पर है. एसएफएल और डब्ल्यूएफएल कुछ भी हो, तुम देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स हैं. NH3 एसएफएल है, CO एसएफएल है, तो उसके केस में भी ऐसा ही हुआ है. अब क्वेश्चन आता है सर वीबीटी में तो हमें ये बताया गया था यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, लो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे. पता है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, that is not sp3 hybridization, that is dsp2 hybridization. तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी कौन सा पॉसिबिलिटी देख रहे हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए. तो टेट्राहेड्रल बचता ही नहीं है, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है. दिस इज नॉट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. तो जिसे स्ट्रॉन्ग फील्ड को जिसे पेयर्ड अप करवाना रहता है ना, वो टेट्राहेड्रल बनाता ही नहीं है बेसिकली. यदि टेट्राहेड्रल बन रहा है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पर समझ पा रहे हो क्या मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 has two kind of geometry. एक तो है स्क्वायर प्लेनर SP और एक है टेट्राहेड्रल TH. तो यदि TH बन रहा है इसका मतलब हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हैं VBT के अकॉर्डिंग, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हाई स्पिन रहने दे रहे हैं, फोर्सफुली पेयर अप नहीं करवा रहे हैं उन्हें. और स्क्वायर प्लेनर होता है तो उन्हें फोर्सफुली पेयर अप करवाते हैं. तो स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री का तो नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ डिस्कशन टेट्राहेड्रल का कर रहे हैं.
बोलो अभी। लेकिन टेट्राहेड्रल में तो डी यूज ही नहीं होता है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन, हाँ हाइब्रिडाइजेशन में डी यूज नहीं होता है, sp3 होता है टेट्राहेड्रल में, और sp3 होता है, इसलिए ही तो हमें अंदर के डी इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये तो डी इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा तुम देखोगे कहीं भी मैंने क्रॉस नहीं बनाया, क्रॉस मींस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगेंड्स। In this case, CFT, there is no acceptance of electron. There is just a electrostatic interaction. Electrostatic interaction means what? Interaction is completely ionic, no transfer of electrons. एक positive charge, एक negative charge, उनमें interaction हो रहा है. That's it. Sharing electron की नहीं हो रही है. Got it? यस सर। यस सर। अच्छा बाई चांस, वैसे तो मैंने सर को बता दिया था, इवनिंग में भी सर लेक्चर लिंक शेयर करना भूल जाए ना तुम्हारे ग्रुप पर एसटीजे सर, तो या तो एसटीजे सर को मैसेज कर देना या मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा उनके। एसटीजे सर ग्रुप में है या नहीं है मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं होंगे तो ऐड कर लूंगा। नहीं है सर। कर लूंगा मैं उन्हें ऐड। अच्छा मुझे थोड़ा सा तुमसे लोगों से बात भी करनी थी, हो गया क्या कॉपी पेज? यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट पेज पे जाने के पहले मुझे थोड़ी सी तुम लोगों से ये बात करनी थी। रिकॉर्डिंग बंद करना तो कर दो अभी 2 मिनट। इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, किसी को जल्दी तो नहीं है ना जाने की? कंटिन्यू कर रहे हैं हम लेक्चर ना, शायद टाइम हो गया, स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग द लेक्चर जब तक ये खत्म नहीं होता है। In square planar geometry, the splitting will be in this manner. 5 जो orbitals हैं बजाय T2G EG के, now they will split into this kind of manner. इसका मैं reason भी बताता हूँ। In case of square planar geometry, let's say this is x-axis, minus x-axis, y-axis, minus y-axis. All ligands approaches in this direction. Plus x minus x, plus y minus y, and plus z minus z. उनका direction of approach ये रहेगा। तो इस एक्सिस के अलोंग होता है dx2y2। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होगा dx2y2 से, dx2y2 का एनर्जी सबसे ज्यादा। उसके बाद इंटरेक्शन होगा जो xy प्लेन में ही है बट नॉट अलोंग द एक्सिस, मतलब dxy से। क्लियर? और सबसे कम इंटरेक्शन होता है dyz एंड dxz से। तो ये स्प्लिटिंग तुम्हें समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? Now the four ligands are approaching from plus x minus x plus y minus y, and the energy will be more where the interaction is more. तो ये हमें डायग्राम ध्यान रखना है। इसमें तुम देखोगे सिर्फ ये है dxy जो सबसे नीचे था पहले, वो उठ के सेकंड पोजीशन पे चला गया, dz2 जो x2y2 के साथ था वो थर्ड पोजीशन पे आ गया। इज दैट ओके? सर इसे एक बार रिपीट कर दीजिए ना। यहाँ पर इंटरेक्शन जो होगा प्लस एक्स माइनस एक्स डायरेक्शन से होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। द लिगेंड, फोर लिगेंड विल अप्रोच फ्रॉम प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ये चार तरफ से, फोर डायरेक्शंस में। So the orbital which are present along x and y axis, that is dx2 y2, have maximum interaction, maximum repulsion energy. तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसका हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद होगा जो xy प्लेन पे है बट नॉट along the axis, मतलब dxy का, और फिर इस ऑर्डर में एनर्जी स्प्लिट हो रहा है। So the splitting energy difference from highest to lowest is delta sp. Delta is splitting energy, sp for square planar. और ये इसका ऑर्डर रहता है, डेल्टा एसपी सबसे ज्यादा होता है, डेल्टा टी सबसे कम होता है। क्लियर है सर। मैं पहले पूरा पेज एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आराम से कॉपी कर लेना तुम। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी इज डिसाइडेड बाय
जो भी स्प्लिटिंग एनर्जी वो कैसे डिसाइड होता है? नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल हैव मोर स्प्लिटिंग एनर्जी, वीक फील्ड लिगेंड विल हैव लेस स्प्लिटिंग एनर्जी। ये तो हमें पता ही है हमेशा से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड याद रखने का एक रफ आइडिया ये है, कार्बन डोनर इज जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन डोनर्स आर जनरली वीक फील्ड लिगेंड्स, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विल नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली। The second factor which affects the splitting energy is geometry of the complex, tetrahedral है, octahedral है। Third, nature of metal ion. Nature of metal ion, देखो हम जब 3D से 4D में एक एग्जांपल ले लेता हूँ उसका, हम आते हैं कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट के नीचे क्या होता है एनीवन? कोबाल्ट के नीचे रोडियम, उसके नीचे इरिडियम, पैलेडियम, कोबाल्ट, रोडियम, पैलेडियम, राइट? यही होता है ना? इरिडियम होता है सर। इरिडियम। चलो तुम बोल रहे तो वो लिख देता हूँ बस। तो ये कुछ होगा +3। यहाँ पर as you go down the group 3D से 4D, 4D से 5D पे जाओगे, there is an increase in splitting energy। इनमें आता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण काफी ज्यादा Z इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है इनका। सो दे विल इंटरेक्ट मोर स्ट्रांगली। इवन 4D 5D के लिए तो वीक फील्ड लिगेंड जैसी कोई चीज ही नहीं होती, उनके लिए सब कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, इसलिए वो टेट्राहेड्रल बनाते ही नहीं है, स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। So splitting energy will increase from 3D to 4D, then 4 to 5D। Clear? 5D का splitting सबसे ज्यादा, 3D का सबसे कम। Fourth one, oxidation state of metal ion। क्या लगता है सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा या कम स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से? बोलो जल्दी। Greater the positive charge on central atom, more will be interaction with electron pair or less will be interaction with electron pair? More. More More. interaction. More interaction, more splitting energy. So higher charge will have higher splitting energy. Is that okay? Yes, sir. चलो कॉपी कर लो जल्दी से। सर ये जो लिगेंड्स में कंपैरिजन दिया है ये किसके बेसिस पे दिया है? SFL क्या? कौन से लिगेंड के बेस पे? फर्स्ट पॉइंट में ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला।
ये तो जस्ट थोड़ा सा तुम्हें बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है। जब भी कार्बन डोनर साइट है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन डोनर साइट है तो वीक फील्ड लिगेंड। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैज लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये एक रफ आइडिया है, नॉट हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, ओके हो गया पेज? यस सर। चलो इतना सा और कॉपी कर लो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन किलेशन इफेक्ट, डोमिनेटिंग फैक्टर है। कहीं भी किलेशन 5-6 मेंबर रिंग बनेगा तो वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर? सेकंड, स्प्लिटिंग एनर्जी। जितना ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी मींस ग्रेटर द इंटरेक्शन ऑफ लिगेंड विद द सेंट्रल एटम, stability of such kind of complex will be more. Higher the splitting energy, greater will be stability. क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण आया है। जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगी मतलब उतना बेटर इंटरेक्शन होगा सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स में। इज दैट ओके? Yes. Excuse me, sir. यस। सर वो सेकंड पॉइंट में हायर स्प्लिटिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी ग्रेड की होगी, वो नहीं समझा। मुझे बताओ why we are getting splitting energy? The reason for splitting energy is basically interaction of central atom and ligand. ज्यादा इंटरेक्शन है इसलिए स्प्लिटिंग हो रही है। तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन हो क्यों रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बॉन्डिंग के लिए। सो उतना स्टेबल बॉन्ड बनेगा, उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाँ सर, समझ गए। चलो मैं होमवर्क ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। क्लियर? अभी कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन।